Welcome to the class. Today's topic is reproduction in organism from class 12. जैसे कि आपको पता है, ऑर्गेनिज्म का मतलब ही है कि वो जन्म लेंगे, बड़े होंगे, अपने समान बच्चों को पैदा करेंगे, बूढ़े होते हैं और फाइनली उनकी डेथ हो जाती है। इस पूरे टाइम पीरियड को उनका लाइफ स्पैन कहा जाता है। सो इन बायोलॉजी वी कैन से दैट द लाइफ स्पैन इज the time period from birth to the natural death of the organism. ये लाइफ स्पैन अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होता है. That means it varies from few minutes, few hours to several years. For example, lifespan of bacteria is 20 to 30 minutes. That is, a bacteria can divide within 20 to 30 minutes into two bacteria, which itself grows and then again it divides within 20 to 30 minutes. That is, lifespan of bacteria is 20 to 30 minutes. Similarly, lifespan of rose is 10 years, crow is 15 years, horse 25 to 30 years, tortoise can live up to 150 years, and a redwood tree can live over 7,000 years. So, during lifespan, we have studied that कि एक ऑर्गेनिज्म मैच्योर होकर अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है. यह ऑफस्प्रिंग्स के प्रोड्यूस करने का प्रोसेस ही है रिप्रोडक्शन, जो आज हम पढ़ने वाले हैं. तो प्रश्न है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस by which an organism gives rise to young ones similar to itself. Young ones means their offsprings. Those offsprings again grows, matures, and in turn produce new offsprings. So the question arises, why do the organisms reproduce? Organisms क्यों reproduce करते हैं? जब भी organisms अपने लाइफ को कंप्लीट करते हुए उनकी डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद इस अर्थ पे अपने स्पीसीज के कंटिन्यूटी के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए उनको अपने पीछे ऑफस्प्रिंग को छोड़ना होता है, जिससे कि उनके स्पीसीज का कंटिन्यूएशन इस अर्थ पे चलता रहे. और इसी वजह से ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं. सो द रीजन बिहाइंड द रिप्रोडक्शन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू कंटिन्यू देयर रेसेस ऑन द अर्थ. Now the topic is types of reproduction. As you all know, there are two types of reproduction, asexual and sexual. In asexual reproduction, single parent is involved. Here, no gamete formation occurs and therewise no zygote formation occurs. In this process, the offsprings which are produced are genetically and morphologically alike. And these offsprings are called clone. यहाँ जेनेटिकली का मतलब है कि उनका डीएनए एक सा होगा, क्योंकि सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व है और माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू ऑफस्प्रिंग्स का फॉर्मेशन होता है. तो डीएनए उनके पेरेंट्स में जैसा होता है वैसे ही उनके ऑफस्प्रिंग्स में होता है. इसीलिए ऑफस्प्रिंग्स जेनेटिकली अलाइक होते हैं. क्योंकि वो जेनेटिकली अलाइक हैं तो वो बाहर से देखने में भी एक से होते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकली अलाइक. These offsprings are produced through mitosis cell division. Such kind of asexual reproduction occurs in monerans, protists, in some plants and animals. Now we will learn about types of asexual reproduction. It occurs in various ways like fission, budding, fragmentation, spores and by gamete formation. The first one is fission. Fission means breakdown. Parent body डिवाइड होकर दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स बनाते हैं. अकॉर्डिंगली ये दो तरह का होता है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन. इन केस ऑफ बाइनरी फिशन, द पैरेंट बॉडी, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस डिवाइड्स टू मेक टू ऑफस्प्रिंग्स व्हिच ग्रो एंड अगेन बिकम मैच्योर टू डिवाइड टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स. बाइनरी फिशन फिर दो तरह का होता है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल. Transverse means the cytoplasm will divide transversely. Along with cytoplasm, the nucleus will divide transversely and produce two offsprings. It occurs in ciliates like Paramecium. Longitudinal binary fission यूग्लिना में होता है, जैसे इसमें
साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड होता है। इन केस ऑफ मल्टीपल फिशन, द पैरेंट बॉडीज न्यूक्लियाई डिवाइड टू मेक मेनी न्यूक्लियाई and it produces many individuals or offsprings. It occurs in amoeba by sporulation. It also occurs in mammalian parasite Plasmodium. The second type of asexual reproduction is budding. Budding में parent body के साथ एक irregular bud develop होता है जो कि parent body से detach होकर एक नया offspring तैयार करता है। ये ईस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है। इन फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट का मतलब ही होता है पीस। पैरेंट बॉडी से टूटकर कुछ पीस अलग होते हैं और ये पीस यानी कि फ्रैगमेंट डेवलप होकर एक नया ऑफस्प्रिंग बनाता है। ये जनरली हाइड्रा में होता है। द फोर्थ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज स्पोर। स्पोर फॉर्मेशन के जरिए रिप्रोडक्शन जनरली एल्गीज में और फंगीज में होता है। कई तरह के स्पोर बनते हैं इनमें, जैसे जूस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, कोनिडिया, और इनके जरिए इनमें रिप्रोडक्शन होता है। जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर कहने का मतलब है कि जूस्पोर में मोटाइल फ्लैजेलेट स्पोर्स होते हैं, whereas इन स्पोरेंजियोस्पोर्स नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजेलेट स्पोर होते हैं। गैमील फॉर्मेशन ऑकर्स इन स्पॉन्जेस। Now we will learn about vegetative propagation. Plants में asexual reproduction उसकी कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स के जरिए होता है और उन वेजिटेटिव पार्ट्स को वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहते हैं। प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स सेपरेट होकर, प्लांट से सेपरेट होकर नए ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं, अर्थात नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं, और इस तरह के रिप्रोडक्शन के टाइप को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपागेशन कहा जाता है। ये प्लांट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर में वेजिटेटिव प्रोपागेशन के जरिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्लांट्स में दो तरह से होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन यहाँ पर उन मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे जिसको प्लांट गार्डनर्स और हॉर्टिकल्चरिस्ट ने क्रॉप्स की कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए डेवलप किया है। ये कई तरह से होते हैं, जैसे कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर मेथड, which is also known as micro propagation. Cutting is very simple method in which any plant part like stem or leaf is used for growing a new plant. It is generally used in rose, bryophyllum. जो दूसरा प्रकार है वो है लेयरिंग। ये भी दो तरह का होता है, माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग। माउंट लेयरिंग में स्टेम के ब्रांचेस को जमीन के अंदर दबाते हैं और उससे एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ये ज़्यादातर जैस्मिन, ग्रेपवाइन जैसे प्लांट्स में यूज़ होता है। एयर लेयरिंग में प्लांट के स्टेम को एयर में ही यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोपगेशन ऑफ और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट। इट इज़ वेरियसली यूज्ड इन ऑरेंज, लेमन एसेट्रा। द थर्ड टाइप इज ग्राफ्टिंग। ये ऐसे प्लांट्स में यूज़ किया जाता है जिसके पास मस्कुलर कैम्बियम होता है। इसमें एक प्लांट को स्टॉक की तरह यूज़ किया जाता है जो कि सपोर्टिंग प्लांट होता है और उसके ऊपर मोर डेवलप्ड प्लांट के पार्ट को यूज़ किया जाता है जिसे सियोन कहते हैं। ये मैंगो, रोज जैसे प्लांट्स में यूज़ होता है। द फोर्थ टाइप इज टिश्यू कल्चर। ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है जिसमें बहुत ही कम समय का इस्तेमाल करके बहुत सारे आइडेंटिकल प्लांटलेट को ग्रो किया जाता है। इसमें ये एक ऐसा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है जिसमें सेल्स को आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में कल्चर करके अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल तैयार किया जाता है जिसे कैलस कहते हैं, और वही कैलस डिफरेंशिएट होकर प्लांटलेट बनाता है। इस तरह से बहुत सारे प्लांटलेट तैयार किए जाते हैं और उससे नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। ये ज़्यादातर ऑर्नामेंटल प्लांट्स के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, जैसे ऑर्किड्स। प्लांट्स में नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कई तरीके से होता है जिसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, लाइक रनर, राइजोम, ट्यूबर, बल्ब एंड स्टोलन एट्सेट्रा। रनर का एग्जाम्पल दूब घास दिया हुआ है। इन सब से हम बहुत अच्छे से परिचित हैं। आप सभी को पता है कि स्टेम के अंदर नोड और इंटरनोड होते हैं। दूब घास के पिक्चर में आप देखिए तो दो नोड के बीच का जो पार्ट है वो इंटरनोड, और यही इंटरनोड
एक नए प्लांट को जन्म देने के लिए बढ़ता है। उसके नोडल पार्ट से नीचे रूट निकलते हैं और ऊपर पत्तियां निकलती हैं और इस तरह से एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। जो दूसरा वाला टाइप है वो है राइजोम। इसका एग्जाम्पल है जिंजर। तीसरा टाइप का एग्जाम्पल है पोटैटो, ट्यूबर। बल्ब, अनियन एग्जाम्पल है इसका। स्टर्लम का एग्जाम्पल है मिंट। मिंट में हम देख पा रहे हैं कि एक स्टेम के दो नोडल पार्ट का जो बीच वाला इंटरनोड पार्ट है वो आर्च सेप हो गया है और यही नए प्लांट को जन्म देता है। अब पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन ऐसे प्लांट्स के प्रोपागेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने सीड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी लॉस करी है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो बहुत कम क्वांटिटीज में वायबल सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, या ऐसे प्लांट्स जो पुअर सीड वायबिलिटी और प्रोलॉन्ग सीड डोर्मेंसी वाले होते हैं, इनमें भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में ओरिजिनल प्लांट का डीएनए रिटेन्ड होता है और ये इंडेफिनिट नंबर तक मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो हमें एक ही जैसे प्लांट बहुत सारे कॉपीज में मिल जाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन का ही एक टाइप है टिश्यू कल्चर मेथड। इस मेथड के जरिए हम डिजीज फ्री प्लांट्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं, इवन फ्रॉम द डिजीज प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपागेशन करने वाले प्लांट्स में हम फिजिको केमिकल ट्रीटमेंट को बहुत ही आसानी से भी स्टडी कर सकते हैं। For today, class is over. If you have any kind of doubt, please comment. अगले वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे।